Welcome students to the practical number 3B. Create a cube with the suitable dimensions and fact table based on ROLAP, MOLAP and HOLAP model. Now we will be using basic our ROLAP only for creating our cube. So let's start working with this particular practicals. Before I start with the practical, some basic information you must be knowing that cube Olap, that is online analytical processing. It is a computing method that enables a user to easily and selectively extract and query the data in order to analyze it from different points of view. So basically, user को कभी भी analysis करना रहेगा तो better होता है कि every time filing such kind of complex queries for analysis is difficult. So better to create those analysis ready in a queue. So whenever you need that analysis, it should be easy for you to go for retrieving those information. So basic structure you can understand about OLAP process, that various data sources are been extracted and been stored inside a data warehouse. From the data warehouse, a OLAP cube has been created and the user is firing the queries on OLAP cube. So to get the desired outcome which can be used by the management for taking the appropriate decision. Types of OLAP is MOLAP, ROLAP and HOLAP. That is multidimensional online analytical processing, relational online analytical processing and hybrid online analytical processing, which is a combination of ROLAP and MOLAP. Now let's work on the prerequisites of this practical. What we need to have a Visual Studio 2022 must be installed. In our earlier video, I had told you how to go for installing the extension of analysis services. So you please see to that you will be installing this analysis services extension in your Visual Studio also. Further, you must be having SQL Server. Along with that, you must be having SQL Server Management Studio. And when you are installing the SQL Server, please see to it that you will be also adding the services called as analysis services, as well as your integration services also. So this is how your SQL Server Management Studio looks like. Not options are there. I just try to disconnect it so you can easily find that how this Management Studio looks like. So this is what your Management Studio is all about. You'll be finding over here the Object Explorer. And when you're trying to connect, you're getting various services like database service, analysis service, integration service, reporting service, Azure storage, Azure SSIS integration runtime. Database engine is normally used by everyone. So we try to connect it to the database engine. Similarly, you should be able to connect towards the analysis services also. If you are not able to connect to the analysis services, that means your analysis services is not installed. And if your analysis services is not installed, then your practical will not be successfully complete. So this is the prerequisite which is needed to be updated by you when you are planning to go for this kind of practicals. Moving ahead, it has been told by me that set up the SQL Server authentication mode. It is a mixed mode, so it is better to go for changing the authentication mode also. For that, you can disconnect towards the analysis services. I don't have any issue. You go towards your database services where I had gone. I had just connected towards the database engine by using Windows authentication. Given a click on connect. Moving ahead, you will find there is a option which has been available over here as security. When I'm going over here in right clicking, selecting properties, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी करके. मेरे यहाँ पे तो सिलेक्टेड ही है दोनों करके, बट आपके यहाँ पे शायद नहीं सिलेक्टेड रहेगा. So please see to it that you will be selecting SQL Server and Windows Authentication mode both. Then you give a click on OK. Then you please expand the security. Then go towards login. Login में आपको यूजर मिलेगा ऐसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. राइट क्लिक करो ऐसे को राइट क्लिक करने के बाद में हम लोग जाएंगे प्रॉपर्टीज में. प्रॉपर्टीज में आपको जो पासवर्ड सेट करना है वो आप सेट करो. एंड डू नॉट फॉरगेट दैट स्टेटस मस्ट बी इनेबल्ड. बिकॉज बाय डिफॉल्ट इसका सेटअप रहता है डिसेबल्ड रहता है. तो सेटअप क्या होना चाहिए आपका? इनेबल्ड होना चाहिए. इतना होने के बाद में आपका ये जो सर्विस है इसको आप राइट क्लिक करके क्या करोगे? रिस्टार्ट करो.
अदरवाइज इफ यू आर नॉट रिस्टार्टिंग द सर्विसेज देन जो जो चेंजेस आपने किया हुआ है उसका इफेक्ट तो आने वाला है नहीं। तो बेटर होगा कि आपने क्या करना चाहिए, आपका सर्विसेज को एक बार रिस्टार्ट करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि सर एक काम करते हैं हम लोग मशीन को रिस्टार्ट करते हैं। मशीन को रिस्टार्ट किया तो भी वही बात है, या फिर राइट क्लिक करो सर्विस पे और सिलेक्ट करो रिस्टार्ट। सो ऑल द चेंजेस विच आर मेड बाय यू दे विल टेक इफेक्ट इन योर एप्लीकेशन। चल, तो यहां तक तो हो गया मेरा। तो ये मेरा प्रीरिक्विजिट्स था जो आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। जब तक ये नहीं है तब तक ये प्रैक्टिकल आपका होने वाला नहीं। नाउ लेट्स मूव अहेड। द स्टेप्स विच आर बीन डिजाइन, थोड़ा बहुत मेरे स्टूडेंट्स में वो भी अब मुझे हेल्प करने वाले हैं फॉर डेवलपिंग द प्रैक्टिकल। ऑलरेडी हमारा क्लासरूम में तो हो ही गया, तो वीडियो बनाते वक्त मैं सोच रहा हूँ उन्होंने भी थोड़ा इनपुट देना चाहिए। तो क्रिएटिंग द डेटा वेयर हाउस, सबसे पहला डेटा वेयर हाउस क्रिएट करना। पर एक इश्यू है मेरा प्रैक्टिकल में कि मेरे यहाँ पे ना सब डेटाबेस पहले से बन गए। सो आई विल गो टू डेटाबेस। मेरा एक सेल्स DW नाम का डेटाबेस बन गया, इसको मैं राइट क्लिक कर दिया और सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे डिलीट, एड गिवन क्लिक ऑन ओपन। सो आई डोंट हैव एनी डेटाबेस नाउ, सो आई नीड टू टेक अप सम काइंड ऑफ सैंपल डेटाबेस। जो डेटाबेस के हेल्प से मैं क्या करूंगा, क्यूब को जनरेट करूंगा। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है वो देख लो। मेरा फर्स्ट स्टेप है क्रिएटिंग द डेटा वेयर हाउस, टेक अ सैंपल डेटाबेस फ्रॉम कोड प्रोजेक्ट। तो कोड प्रोजेक्ट में एक अच्छा सा एक प्रैक्टिकल है, अच्छा वेबसाइट है जहां पे आपको एक स्क्रिप्ट मिलने वाला है डेटाबेस का। वो स्क्रिप्ट को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रोम में चले जाते हैं और आपका कोड प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता है। राइट, क्रिएटिंग फर्स्ट डेटा वेयर हाउस, यहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते हैं स्क्रिप्ट को। आपको लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, फ्री में आप रजिस्टर कर लो। बट मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड किया रहेगा तो उसी को ओपन कर लेता हूँ। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड AZ900 न्यू लीड्स वगैरह, बहुत बड़ा कुछ डिटेल्स है मेरे पास में। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट वेयर इज द ऑप्शन विच इज बीन अवेलेबल विच विल बी हेल्पिंग मी। आई थिंक सो मेरा रार फाइल रहेगा। कहाँ पे रखा है, कुछ आइडिया है क्या? डेस्कटॉप पे रख दिया है, चलो डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। कौन सा, यस, दिस इज द डेटा वेयर हाउस SQL स्क्रिप्ट। तो भी मैं एक काम करता हूँ, मेरा बंदे को बोल देता हूँ कि ये स्क्रिप्ट भी हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पे ऐड कर लेंगे रार फाइल का। तो आप टेलीग्राम से भी ये रार फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड था, यस टू ऑल कर लिया। तो आप देख सकते हो कि ये स्क्रिप्ट आपका अवेलेबल है, डेटा वेयर हाउस SQL स्क्रिप्ट। तो अभी ये स्क्रिप्ट को हम लोग को क्या करना है, ओपन करना। तो मैं फाइल में गया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया ओपन, ओपन में सिलेक्ट किया मैंने फाइल। फाइल में हम लोग चले जाएंगे डेस्कटॉप पे। आई एम गोइंग टू माय डेस्कटॉप, हियर आई एम गोइंग फॉर डेटा वेयर हाउस SQL स्क्रिप्ट, सिलेक्टिंग द स्क्रिप्ट एंड गिवन अ क्लिक ऑन ओपन। तो स्क्रिप्ट इज बीन क्रिएटेड which says that it will be creating a database which is named as cells_DW with a various table. There are some dimension table and there are some fact tables. Now please remember that अपना ट्रांजैक्शन जो रहता है वो फैक्ट टेबल रहता है, और अपने मास्टर टेबल मतलब क्या होता है, डायमेंशन। सर मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अगर अपना परचेस सेल्स का ट्रांजैक्शन है, तो आज मैंने ये प्रोडक्ट सेल किया, तो प्रोडक्ट का आईडी से स्टोर्ड होगा अपने फैक्ट टेबल के अंदर, बट प्रोडक्ट का नाम, उसका डिटेल स्टोर्ड होगा डायमेंशन टेबल के अंदर। सो मोर प्रिसाइजली प्रोडक्ट टेबल जो है अपना मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर, आई विल कॉल इट एज डायमेंशन टेबल। And maybe our purchase or maybe a sales transactional table, I will call it as what, a fact table. So a dimension table and fact table. So I just select the script and gone for executing the script. Once you execute the script, you will find a database got created named as cells_DW. तो database आपका create हो जाएगा cells_DW। So time लग रहा है कि हाँ यार ये script तो execute हो रहा है। So once that script is getting executed, इसको आप लोग एक बार रिफ्रेश करके देख लो, तो आपको दिखाई देगा नया डेटाबेस आपका बन गया, that is named as cells_DW, डेटा वेयर हाउस। तो उसके अंदर अपने सभी टेबल, सभी स्ट्रक्चर क्या रहे अब अवेलेबल है। अभी इसके हेल्प से हम लोग बनाने वाले अपना क्यूब। पर क्यूब बनाने के लिए अपने पास डेटा तो होना चाहिए ना। तो डेटा कहां से लेकर हम लोग, cells_DW नाम का डेटाबेस टेबल है, डेटाबेस है, उसके अंदर ये सब टेबल्स है आपके पास, डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट्स। नाम ऐसे रखना रहता है टेबल का, ऐसा कुछ नहीं, द नेम कैन बी एनीथिंग। सो बट कस्टमर का पर्सनल इंफॉर्मेशन देयर में कस्टमर टेबल, सो आई विल कॉल इट एज व्हाट, हियर कस्टमर डायमेंशन। डेट का डिटेल्स विल बी देयर इन डेट टेबल, सो आई विल कॉल इट एज डेट डायमेंशन। और ये है मेरा प्रोडक्ट का सेल्स, तो ये मेरा क्या हो गया, फैक्ट टेबल हो गया।
सो चलो डेटाबेस तो अपना रेडी करके हो गया. नाउ इज अ टाइम टू गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टेप. सो व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट स्टार्टिंग द विजुअल स्टूडियो. एज एन एडमिनिस्ट्रेटर चालू करके तो भी चलेगा, या फिर हम लोग यूज करने वाले एसक्यूएल सर्वर का ऑथेंटिकेशन. तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर के चालू किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, बट गुड हैबिट. अब स्टार्टेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. चलो अपना विजुअल स्टूडियो चालू हो गया एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. And here I would like to create my new project. So I will be going towards creating a new project. Do not forget that you will be selecting the type of the project is analysis services multidimensional project. तो आपका प्रोजेक्ट टेम्पलेट क्या होगा? एनालिसिस सर्विसेज मल्टीडायमेंशनल प्रोजेक्ट. अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च करो, मिल जाएगा. वो भी नहीं मिल रहा है मतलब आपने इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं किया. मैंने बताया था प्री रिक्विजिट में आपको विजुअल स्टूडियो में एक एक्सटेंशन ऐड करना है. अगर वो एक्सटेंशन ऐड नहीं होगा तो ये टेम्पलेट आपको दिखाई देने वाला नहीं. देन आई विल गो टू गिव ए क्लिक ऑन नेक्स्ट. हियर इट आस्क्स मी द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट. मे बी आई हैड गिवन द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एज सेल्स क्यूब प्रोजेक्ट. मेरा क्या रहेगा? एक सेल्स क्यूब नाम का एक प्रोजेक्ट है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करना सोचा है. तो आई हैड गिवन ए क्लिक ऑन क्रिएट नाउ. सो अ न्यू प्रोजेक्ट गेट क्रिएटेड कॉल्ड एज सेल्स क्यूब प्रोजेक्ट. अभी एनालिसिस सर्विस का प्रोजेक्ट है तो आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में कुछ अलग ही चीजें दिखाई देंगी. अलग चीजें मतलब डेटा सोर्स को स्पेसिफाई करना है, व्यूज को स्पेसिफाई करना है, क्यूब को क्रिएट करना है, डायमेंशंस है, रूल्स है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है जो आपको यूज करना है फॉर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट. तो चलो ये स्क्रिप्ट को मैं एक बार क्लोज कर देता हूं. तो कहां तक हम लोग आए? हम लोगों ने स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया, हम लोगों ने नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया, और अभी हम लोग को क्रिएट करना है एक न्यू डेटा सोर्स व्यू. तो हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू डेटा सोर्स व्यू? क्वाइट इजी. राइट क्लिक करो डेटा सोर्स पे, यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू डेटा सोर्स. फिर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करो क्रिएटिंग अ डेटा सोर्स बेस्ड ऑन अदर प्रोजेक्ट और क्रिएटिंग द डेटा सोर्स ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. मैं बोलता नया ही बना के दिखा देता हूं, तो डिलीट कर दिए. यहाँ पे न्यू में क्लिक कर दिया. यहाँ पे न्यू में जब क्लिक करोगे वो पूछता है कि सर्वर का नाम कौन सा है. तो आपका एसक्यूएल सर्वर का नाम कौन सा है आप ही याद रख रहे हो. तो मैं प्रॉपर्टीज में यहाँ पे चला गया. सो आई हैड कॉपीड दिस सर्वर नेम एंड देन फर्दर दिस सर्वर नेम इज बीन पास्ड बाय मी ओवर हियर. Then it asks me what kind of authentication you are interested in using. Please select over here SQL through authentication. Use your username as SA. Use your password which is set by you. तो मैंने जो सेट किया तो मेरे पासवर्ड यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिया. और आपका जो डेटाबेस बन गया था सेल्स अंडरस्कोर DW, इसको आप सिलेक्ट कर लो. एक बार टेस्ट करके देखो कनेक्शन सक्सेसफुल है या नहीं. अगर सक्सेसफुल है तो नो इश्यूज. देन यू कैन गिव अ क्लिक ऑन व्हाट यू ओके. देन गिव अ क्लिक ऑन नेक्स्ट. यूज द स्पेसिफिक विंडोज यूजर नेम एंड पासवर्ड. यहाँ पे आपको यूज करना है इनहेरिट, मतलब जो आपने पहले सेलेक्ट किया था वही आपका क्या होगा वापस एक बार यूज होगा. देन गिवन ए क्लिक ऑन नेक्स्ट. इट आस्क्स मी व्हाट द नेम ऑफ डेटा सोर्स यू वुड लाइक टू प्रोवाइड. आई एम इंटरेस्टेड इन गिविंग द डिफॉल्ट डेटा सोर्स ओनली. अगर यहाँ पे भी अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप नाम चेंज कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे वही नाम रखा है सेल्स अंडरस्कोर DW. देन गिवन ए क्लिक ऑन फिनिश. तो यू कैन फाइंड अ न्यू सेल्स DW डेटा सोर्स हैज बीन क्रिएटेड. अगर इसको डबल क्लिक करूंगा तो वापस एक बार मुझे कनेक्शंस को चेंज वगैरह करना रहेगा तो ऑप्शन आपको मिल जाए. नेक्स्ट स्टेप क्या है देख रहे हो. अब पहला स्टेप तो अपना हो गया स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करके हो गया. सेकंड स्टेप अपना हो गया विजुअल स्टूडियो का प्रोजेक्ट क्रिएट करके हो गया. थर्ड स्टेप हो गया अपना न्यू डेटा सोर्स व्यू क्रिएट हो गया. देन आई वुड लाइक टू गो फॉर क्रिएटिंग द क्यूब. उसके पहले क्रिएटिंग न्यू डेटा सोर्स व्यू भी बनाना बाकी है. तो न्यू डेटा सोर्स बन गया, राइट. तो अभी क्या करना है आप लोगों को डेटा सोर्स व्यू भी बनाना है. तो पहले डेटा सोर्स को क्रिएट करना है और बाद में क्या करना है डेटा सोर्स व्यूज को क्रिएट करना है. यहाँ पे राइट क्लिक करोगे बोलेगा न्यू डेटा सोर्स व्यू. नेक्स्ट में आप क्लिक करोगे फिर डेटा सोर्स लेगा सेल्स DW का. गिवन ए क्लिक ऑन नेक्स्ट. इट आस्क्स यू दैट ये सब फैक्ट टेबल ये सब डायमेंशन कौन से चाहिए. मैंने फैक्ट टेबल ले लिया, मुझे चाहिए और क्लिक कर दिया ऐड रिलेटेड टेबल. सभी टेबल आ गए. मतलब ये फैक्ट टेबल से बेस्ड में जो प्राइमरी की के टेबल्स थे वो भी टेबल क्या हो गए यहाँ पे सिलेक्ट हो गए. देन आई गिवन ए क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड आई गिवन ए क्लिक ऑन फिनिश. सो यू विल फाइंड वन डेटा सोर्स व्यू इज बीन क्रिएटेड. This is very interesting to watch that how these tables are been linked with each other. So you can double click on cells DW. You will find you have a fact table and you are having multiple dimension table. And अगर थियरी थोड़ा सा पढ़ा है तो इसको ही हम लोग बोलते हैं स्टार स्कीमा. दो टाइप का स्कीमा आता है ना. एक होता है स्टार स्कीमा
दूसरा होता है स्नोफ्लेक स्टार स्कीमा। अगर आपका डायमेंशन टेबल सब डिवाइडेड होगा मल्टीपल डायमेंशन में तो उसको स्नोफ्लेक बोलते हैं। अदरवाइज इसी को हम लोग क्या बोलते रहे बाबा, स्टार स्कीमा बोलते हैं। तो ये हो गया अपना व्यू एंड आई हैप्पी विथ माय व्यू। चलो व्यू में मुझे समझ में आ गया मेरे टेबल एक दूसरे के साथ में कैसा लिंक्ड है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? क्रिएटिंग द क्यूब। So give a right click and select the option as new cube. It asks you welcome to the cube wizard. I just say fine. Next, it says use the existing table or create an empty cube or generate tables in the data source. What I should select, Pranali? Okay, use an existing table. Then I'd given a click on next. It asks me आपका जो cube create करना उसमें आपका मेजर्स और ग्रुप्स का टेबल कौन सा, यहाँ पे कौन सा टेबल सिलेक्ट करना है। हाँ, तो मेजर्स मतलब क्या? मैंने बताया था क्लासरूम में मेजर्स मतलब क्या, जहां पे हम लोग एग्रीगेशंस करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबा? मेजर्स बोलते हैं। मतलब टोटल सेल्स क्वांटिटी कितना था ये डेट को, ये प्रोडक्ट का सेल्स क्वांटिटी ये ईयर में कितना हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे रे बाबा? इसको हम लोग बोलेंगे मेजर। सो आई एम डिसाइडिंग द फैक्ट टेबल इज माय मेजर, देन गिवन अ क्लिक ऑन नेक्स्ट and it shows me fine the all columns are considered as the majors, or you don't want something to be considered as a major. So I just say fine, let it be everything, I don't mind. Then given a click on next, then all dimension tables are being shown to you because they are related with your fact table only. Further I given a click on next. It asks me what is the name of the cube. Let the name of the cube is same, that is cells DW. Given a click on finish. So you'll find your cube is being created as well as your dimensions are also being created. तो बताओ प्रणाली अभी नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना चाहिए, किसका प्रॉपर्टी मुझे सेट करना है बेटा? डिप्लॉयमेंट डायरेक्टली कर लूं क्या, कुछ डायमेंशन में सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करना है? हाँ, कहाँ चेंज करना? डिप्लॉयमेंट में चेंज करना है कि और भी यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करना है? हाँ, तो क्या सिलेक्ट करूं अभी यहाँ पे? डेट डायमेंशन। ओके, डेट डायमेंशन में आ गया, फिर आगे क्या करूं? जो जो चाहिए वो ड्रैग करना है। क्या चाहिए डेट में? मुझे क्या क्या चाहिए? अच्छा, ईयर ले लूं तो चलो यार यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? लेंगे डेटा सोर्स व्यू में मैंने बोला डे ऑफ ईयर लूं क्या, मंथ ऑफ ईयर लूं क्या, ईयर लूं? दैट यू डिसाइड। तो आई विल प्रीफर टू गो फॉर ईयर। I will prefer to have a year. I would like to have a maybe quarter. I would like to have a month of quarter, or maybe I'm interested in taking month. Right? If I want month name, I can take the month name also. So I can set up. This is called as attributes of the dimension. This is termed as what here? Attributes of the dimension. मेजर कैलकुलेट कैसे होंगे? मेजर कैलकुलेट होंगे as per month, as per quarter, as per year. Similarly, you are able to go for changing the attribute or setting the attributes for other dimensions also. दूसरे डायमेंशन पे हम लोग सेट कर सकते। हायरार्की क्रिएट करना तो चलो बेटा बोलो कहां पे हायरार्की क्रिएट करूं फिर अभी? सबसे ऊपर कौन चाहिए? ईयर चाहिए। नेक्स्ट, उसके नीचे कौन चाहिए? क्वार्टर चाहिए। क्वार्टर के नीचे कौन चाहिए? मंथ चाहिए। वेरी गुड, हो गया। तो यहां तक हो गया तो मेरा डेट डायमेंशन डिजाइन कंप्लीट हो गया। नाउ यू कैन सेट अप द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्ट डायमेंशन or maybe the customer dimensions and all. You can set up the hierarchy etc. किसको किसको सेट करो बेटा नमिता में अभी? और क्या बस हो गया? डेट इतना ही बस हो गया। टाइम करना है, टाइम को एक बस हो गया। डेट डायमेंशन, उसका एट्रीब्यूट भी सेट हो गया, हायरार्की भी सेट हो गया। प्रोडक्ट भी है आपके पास, प्रोडक्ट को भी आप लोग सेट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। प्रोडक्ट नेम पर, प्रोडक्ट में तो उतना ही है, प्रोडक्ट नेम ही है, तो उसमें कुछ अलग सेट करना लायक कुछ भी नहीं। तो यहां तक तो मेरा सेट करके हो गया। तो आई विल, बट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डायमेंशंस में एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स का हायरार्कीज को क्रिएट कर सकते हो, जिनके बेस पे क्यूब में मेजर्स को इंप्लीमेंट होगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात है, आपको डिप्लॉयमेंट करना है क्यूब का। तो पहले आप प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे क्या बेटा? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में आप क्या सिलेक्ट करोगे? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट आप प्रोसेसिंग ऑप्शन डिफॉल्ट के जगह पे बेटर होगा फुल रखो।
पूरा क्यूब ही डिप्लॉयड रहेगा। और बाद में सर्वर मोड में आप लोग डिप्लॉयमेंट चेंजेस ओनली या डिप्लॉय प्रेफर टू हैव डिप्लॉय ऑल। फिर वो पूछ रहा है कि आपका एनालिसिस सर्विसेज का नाम, सर्वर का नाम क्या है? अच्छा, मेरा ही सर्वर है जिसका नाम ही एनालिसिस सर्विसेज में आता है। देखो ना, यहाँ पे एनालिसिस सर्विसेज में वही सर्वर का नाम है जिसको मैं कनेक्ट कर पाता हूं, है ना। तो बस इसी को आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, तो ये तो आपका डिप्लॉयमेंट होगा। और डिप्लॉयमेंट में बोला हुआ है इट विल बी अ सेल्स क्यूब प्रोजेक्ट। तो आई गिव ए क्लिक ऑन अप्लाई एंड आई गिवन ए क्लिक ऑन ओके। इतना होने के बाद में आप पहले एक बार स्टार्ट कर लो, तो इट विल बी कंप्लीटिंग व्हाट द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। फिर आप आपका मैनेजमेंट सर्विसेज में एनालिसिस सर्विसेज में चले जाओ। ये अपना डेटाबेस सर्विसेज है, ये अपना एनालिसिस सर्विसेज है। इसके डेटाबेस में जाओगे तो आपको मिल गया, आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉयड हो गया। कौन सा? सेल्स क्यूब प्रोजेक्ट, जहां पे आपको डेटा सोर्स मिल रहा है, डेटा सोर्स व्यू मिल रहा है और आपका क्यूब भी मिल रहा है। और ये हो गया आपका कौन सा? अब सेल्स DW क्यूब। अगर आप इसको डबल क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे बोलो ब्राउज, तो यू आर एबल टू गो फॉर ब्राउजिंग द इंफॉर्मेशन। इट्स ए ड्रैग लेवल्स ऑफ द मेजर हियर टू ऐड द क्वेरी। मैं बोलता हूं मेरा फैक्ट टेबल है, कौन सा? मेरा फैक्ट टेबल है अपना सेल्स वाला, जहां पे मैं क्वांटिटी को ड्रैग करने वाला हूं। क्वांटिटी चाहिए मुझे, और क्वांटिटी किसके हिसाब से चाहिए? मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से चाहिए। तो प्रोडक्ट का की रखा है मैंने यहाँ। अगर आपको प्रोडक्ट का नाम चाहिए रहेगा तो वहां पे डायमेंशन में एट्रीब्यूट को ऐड करना पड़ेगा। कौन सा रहेगा? प्रोडक्ट नेम कर। और मैं डेट डायमेंशन में देखो यहाँ पे सब आ गया, बिकॉज हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स को ऐड किया था। और यहाँ पे मंथली मैंने स्पेसिफाई कर दिया, और मे बी ईयरली में स्पेसिफाई कर लिया। अच्छा लगा फाइन। और मेजर्स मुझे कौन से चाहिए थे? तो आई एम इंटरेस्टेड, मेजर्स तो ले लिया मैंने, और डायमेंशंस भी ले लिया। और डायमेंशन में ईयर को मैंने यहाँ पे ऊपर भी मेंशन कर लिया, और मैंने प्रोडक्ट को भी मेंशन कर लिया। प्रोडक्ट कहाँ है? प्रोडक्ट कहाँ है? प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन। और एक बार इसको रन करके देखता हूं, तो गेट आउटपुट दैट प्रोडक्ट 1 ईयर 2013 में 7 क्वांटिटी सेल हो गया था, प्रोडक्ट 2 ईयर 2013 में 8 क्वांटिटी सेल हो गया था, एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल गया? यहाँ पे आपको क्यूब का एनालिसिस मिला हुआ है। सो दिस इज द वे बाय विच you are able to create your cube at a practical number 3B. Stay tuned with us, subscribe our channel, be with us. Reason is what? In the next video I will be showing you how to go for importing this cube in our Power BI desktop. So all the best students, and please complete the practicals along with us.